हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੜੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਦੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। हर्ष महाजन ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਨੂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ 9 ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਤਾਂ 34 ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, 3 ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 34 ਵੋਟਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 28 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੀ, 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਏ, 28 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਏ ਤੇ 34 ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਮਨੂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਨਿਕਲ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕਿ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ है। 2-3 दिन के जो घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, प्रदेश की विधानसभा में हुए के ऊपर, और खास करके हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जो एक पहाड़ी राज्य है, एक शांति प्रिय राज्य है, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और उस समय के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कलेक्टिवली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए, चुनावों को जिताया गया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरे तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है। इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है, मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, और जिन लोगों का विश्वास हम में है, जिन्होंने इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है, उनके प्रति ये मेरी जवाबदेही है। मैंने हमेशा से ये बात कही है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं।
प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है। जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है। लगातार इन विषयों को जो है वो, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर है, यहाँ से आगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो तो समय ही उस चीज को बताएगा। मगर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कॉलिंग अ स्पेड, और इन चीजों को हमने जहां जहां हो सकता है हमने उठाया है। बट बिकॉज आई एम अ डिसिप्लिन्ड member of the party, I understand and I know where to draw the line. इसलिए मैंने जितना बात करनी थी उतनी ही बात हमेशा करी है। मगर ये भी सत्य है कि प्रदेश में जो हमारे युवा है, प्रदेश में जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिन्होंने इस सरकार को बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान चुनावों के समय में दिया, are we able to meet their expectation? They supported us. But are we in a position to fulfill our promises for the youth of the state? That is a question that needs to be thought about, that needs to be anticipated upon, and that needs to be duly deliberated and discussed. क्योंकि ultimately हम एक चुनी हुई सरकार है और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम, मगर जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से ये सब चीजें देखने को मिली है हमको प्रदेश के अंदर। एंड आई एम डीपली हर्ट बाय ऑल दीज थिंग्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड। मैंने हमेशा लीडरशिप का सम्मान नजरिया पूरा था और उसको हमने डिलीवर करने का हर संभव प्रयास इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो है वो किया है। मगर मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि देयर वाज फ्रॉम सम क्वार्टर्स attempts to humiliate me in my functioning, in my capacity as है, कहाँ पर हुई है मैं नहीं जानता हूँ, मगर ऐसा लगता है कि डेलिब्रेट तरीके से ये चीजें जो है वो प्रदेश के अंदर या सरकार के अंदर हुई है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी भी प्रेशर में आने वाला है। जैसा मैंने कहा, मुझे पता है, रिगार्ड इसके बारे में जानकारी दी है